So you are welcome to in the live podcast, and we are very happy to know that you are so enthusiastic about other things. So we are going to do this reverse podcast. Now so we welcome Anjali Agarwal to do this reverse podcast for us, and because she is more interested in talking to me, but she's not interested. I am not interested in telling about me, but she is interested that I should tell about her. So she is welcome, and even Sabina is welcome to start this very unique type of podcast, which is the reverse podcast today, and this is for the first time we are going to do. So you can start whatever you like. So let's start with understanding within you है क्या? कैसे आपको idea आया? Within the life means I thought after the retirement, because I was into civil services, after retirement I thought let us connect with people, how they have lived their life till date. कैसे जीवन जिया उन्होंने, क्या problems आई, क्या challenges आए, all those things. So my thinking was that nobody can survive or exist without an inner power. They have, because your routine is not you are sleeping, then you are going to bed, and then you are going to for your exercises. But what is the inner force which runs you? It is not your biological thing only. It's something spiritual, mental, psychological also. And you cannot overcome a crisis just by being healthy. Just by being healthy, you have to be happy, you have to be contented. So all those things, how they come, and how these guys जो हम जिनका इंटरव्यू लिए अभी तक, how अपने लाइफ में उन्होंने उन challenges को कैसे tackle किया. For you, I have a question. Now it is reverse to everything. It is a question. You are a jewelry designer. You are also a speaker, motivational speaker. You are a painter, and what not? You write books. So you are a multi-dimensional personality. So what brings you to this? Because I think jewelry design is a very small field for you, because you are much more than the jewelry designer. For me, I was seeing your profile, so I thought she is such a fantastic person. She must be doing a lot of other things also. So sports, running, even jogging, whatever you have written, yoga, all those things. So I wanted to know how you manage these things. Actually, my motto in life is that if you stop trying, you stop living. So by trying, I don't mean trying to just learn something professionally. By trying, I mean living life. By trying to live life as it is. Because life is something to be decoded and understood every moment. It is changing, it's dynamic. It's not like it's stagnancy. It's not like you're here and okay, you're supposed to live this life. It's a journey. It's a very beautiful journey. And you are meant to imbibe abundance. It is not about, just monetary wealth or materialistic wealth. It's about the abundance from within. And that you can only get when you're actually living, when you're actually trying out different things, when you're understanding what life really means. So, in fact, Anjali, you are defining the meaning of within the life. This is my podcast. This is my podcast. So, you have given a new definition. Thank you so much. Yes. That's why we are both here and discussing this topic. No, basically what you are telling the same things which I thought, because you have to try. There is a sloka in Sanskrit which says that यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः. तो यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, try. यत्न माने try. Yatne krite, doing your yatnas, if it is not happening, ko atra dosa.
तो किसको दोष दो? हाँ जी। तो जो किसको दोष देने वाले लोग हैं वो गलत है। करेक्ट। को अत्र दोष, अपने आप को दोष दो, क्या अगर नहीं अपने आप में क्या दोष रह गया? हाँ, What उस was चीज the को spirit? डिसाइफर करो। हाँ, डिकोड जो वर्ड तुमने यूज, Isn't that interesting? तुमने कहा ना कि को अत्र दोष, लेकिन दुनिया कैसे कहती है? को अत्र दोष, को अत्र दोषा, को अत्र दोषा। हाँ, एंड इन्होंने हमको यत्र दोषा, हाँ अत्र दोष, हाँ, अत्र माने यहाँ, यहाँ दोष। मेरे अंदर क्या दोष इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो इसको योगा से ही अचीव किया जा सकता है। जी। यू आर इनवर्ड लुकिंग rather than holding others responsible for your failures. Absolutely, absolutely. Then you will never learn. Yes. नाच ना आवे आंगन टेढ़। बिल्कुल। राधा को कहे कि इतना तेल नहीं हुआ, हम कैसे अभी 9 मन तेल ना होगा, राधा नाचेगी, कहते हैं ना। जी जी जी। Saying that these things are more important for they are more, I want to blame these things for my failure. अरे blame yourself. या कहीं आपने कुछ चीज को अधूरी छोड़ा। हाँ। या बहुत चीजें होती है लाइफ में, जैसे मेरी जो बुक है उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों ने डिसाइफर की है बहुत मेहनत के बाद, बहुत लोगों से बात करके, जिसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इंजन। मतलब आपका सब कुछ इधर उधर जा रहा है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो वेयर टू लुक, थोड़ा सा चाय पी के और कैजुअल हो जाओ। सो लुक विद इन एंड फाइंड आउट दैट यू नो व्हाट इज योर कोर, आप हैं क्या, व्हाट इज योर कोर, एंड देन आफ्टर कोर देयर आर अदर थिंग्स दैट मेक यू। और सबसे बड़ी चीज मैं बोलती हूँ माइंडसेट, और इसमें हमने इस बुक में वही डिस्कस किया है। इनफैक्ट ये स्टोरीज एंड 17 women from around the world have come together to write these stories. So these are 17 thought leaders from around the world who have spoken in this book, telling their stories, how they came out from a situation of what do we do, how do we manage, to a situation of abundance. How they found their way, what was their journey, little snippets. So it is like a combination of storytelling and telling people what they can do. It's like a book every woman should have by her bedside, that there's a problem, let me understand what I can do. Very good, very good. So what I wanted to know from you, jewelry design and all those things. So these things, do you think what brought you in this jewelry designing? That's also a very interesting story. So I was working for a media house, one of the biggest in India actually, but somewhere deep inside I was not satisfied. I was feeling that no, this is not what I'm born for, this is not what I have to do, there's something much more. So I was just connecting with myself, sitting in silence every day and trying to decipher what is it that is missing in my life. And somehow, whenever there was a paper in front of me and there was a pen, I would just start doodling, and I did not even know, and there was a design being formed. Oh. So it was like free form design, and I did not know how to decipher it at all. And then one day I saw in the newspaper, I think, because I don't remember, it's been a long time, I got this information that there is a German guy who's a very famous jewelry designer who's in India and conducting classes. And I said, okay, maybe some bit of creative venture is going to help me understand what I need to do. Okay. So I left my job. It was a very big decision, leaving such a lovely job, and I left my job and I said no. You were working where? I was working for a very big media house, one of the biggest in India, in a very good position. And I was like, no, I have to do more. There's something I have to decipher, something I need to understand. So the urge of creativity came out. Yes. I left my job and I went to explore, because if something from inside tells you you're not happy, I mean, it's not even just about you're not happy, you're not doing what you're meant to do right now, which means you have to ask the universe, what is that one thing I need to know right now? So when this information came that there was a course happening, I just went and I joined. And once I joined, it was very surprising, but within those 3 months, I understood this is where I'm meant to be. Oh, really? So after 3 months of completing it, then I joined another course deeper into jewelry design. I joined another course. So I studied for more than 2 years. I did my gemology, then I trained in diamonds. I did everything I could to empower myself as an expert in that field. And I started designing. Then I went to the lanes to find Bengali karigars who could work for me. And things like that. It was a very interesting journey and very surprising. God also, I think, sends messages. So there was a competition called Swaranjali being organized by World Gold Council. And in that competition, I won the first prize, All India.
Yeah, that was mentioned for jewelry design. I was like, yes, this is the message, which means God is with me. Let me continue in this line. And so now it's been 20 years, little more than that I've been into the line of jewelry design. And there have been ups and downs, and every time I wanted to give up, because as a woman in the field which is totally dominated by men, and secondly totally dominated by jewelry families, to come up and create a footing that of my own. That is the main challenge. Jewelry families, houses. Absolutely very difficult. And many times I just wanted to give up, and every time I wanted to give up, something happened which gave me that little spark of hope. Yes, no, I still need to continue. And now it's more than 20 years, as I said, and I haven't given up, and I'm there, and now I've made a name for myself. I'm sort of in a good position. So you are commercially also successful in this. Yes. That's good, because that is very important, because if you are still beating them and having your own terms in selling the items, that means you have your own say and your mohar, apni mohar hai. Yeah, I think I'm one of the few jewelry designers in India today, and I'm also a jewelry stylist, probably one of the 1-2 jewelry stylists in India. Do you do this? And a consultant. Do you do this kundan and polki and all those things? Yes, I do. Diamonds, gemstones, kundan, polki. My concentration is on designing and on customized work. So it is not like a showroom where you can walk in. It has to be an evolved person who wants something that he really wants. And so that is when you come to me. Okay. So and then I create a design which is one in the world for you. Yeah, obviously. I also get it manufactured. I source out the right gemstones if you want very high quality gemstones. I source out the right diamonds. And the piece that you get is something unique. Which is very unique, yes. वो अपने आप में कोहिनूर है. हाँ, यही मान लीजिए. So करण जौहर का क्या हाल है? करण जौहर अपनी जगह बहुत खुश है. ये दुनिया बहुत बड़ी है और सब अपनी जगह खुश है. I'm asking this question because उसका एक क्या है ना? त्यानी. जी. वो अपने आप में वो भी ज्वेलरी डिजाइनर बन गया. जी. सब लोग देखिए, अभी मैं दूसरों के बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, बिकॉज सब अपनी जगह पे ठीक हैं, सब अपनी जगह पे खुश हैं, और मैं अपनी जगह पे बहुत खुश हूँ. करण जौहर तो it's a commercial venture. It's nothing. You are a creative person. So we want to promote people like you, if we can, to this world, because if somebody knows that you are a bundle of these surprises, so they will know that she's a real creative designer and all those things. So there I would request you to do something in antique jewelry also, because now these days in US and in Germany and in all the other Western countries, I have seen that people are antique reproduction. Jewelry antique reproduction. Well, that's a fantastic idea. In fact, यहीं से start करते हैं. आज ही मैं इसमें message डालती हूँ लोगों को कि that if you want any antique reproduced, like Maharaja or Patiala का necklace है or anything like that, let's work on that so that they live a longer life. And many of the antiques have disappeared. You see, 90% of our jewelry is gone abroad, got split into smaller pieces and been sold off. But कहीं-कहीं वो design किसी राजा की portrait में कहीं-कहीं है, we can actually recreate it. Yes. Please do that. Because that is nobody is doing it. ये तो आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है. हाँ, ठीक है. आइडिया उसी को दिया जाता है जो उसको एब्जॉर्ब कर पाए ना. जी, सही बात है. They are very straight jacketed. They are very stereotype. Means नहीं सर इसमें तो हो ही नहीं सकता. ये कैसे होगा? अरे कैसे होगा? Trying. Absolutely. And you have to think out of the box. I mean, जिंदगी ये नहीं है कि किसी ने लाइन बना दी, पाथ बना दिया, आज ही पैसे कमाओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं. उसका क्या करोगे if you are not internally happy? It's only when you are happy from within that you can enjoy all the abundance that you've been given, or what you, I won't say earned for yourself, because जो होना है वो आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते. As you said, गीता में तो कर्म कर हे मनुष्य, फल की चिंता मत कर. फल तेरे हाथ में है ही नहीं. Life works in such mysterious ways. Make the jewelry designs, whether it sells or not. जिसको आना होगा समझेगा वो लेगा उसको. बिल्कुल वो आएगा. There are discerning buyers. I mean, see, as I said, दुनिया में हर तरह के लोग हैं. And in every field there are
ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, किसी को बहुत क्वालिटी चाहिए, समथिंग यूनिक चाहिए, दोस पीपल विल ऑटोमेटिकली कम. समटाइम्स द पाथ इज डिफिकल्ट, इट टेक्स टाइम, बट सबका टाइम आता है, एक टाइम के बाद सब आने लग जाते हैं. सो यू हैव टू स्ट्रगल एंड यू हैव टू find your way and keep there, stay there till it actually starts happening for you. Yes, and सबके लिए happening होता है. So, but किसी का कभी, किसी का कभी. You are promising that this is a new thing, antique reproduction you are going to do. Absolutely, I'm going to do in it. public. In public, I'm saying yes, I'm going to do it. Yes, and please. you are my inspiration for this. Inspiration for this. Okay. तो आप तो inspiration इतने ज्यादा है. मेरे को एक question पूछने दीजिए. आपने कहा कि आप संस्कृत के रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, संस्कृत, एस्ट्रोलॉजर भी हैं. संस्कृत में भी आपने बहुत रिसर्च किया, हर पढ़ाई की है. योग में भी आपने बहुत इन डेप्थ पढ़ाई की है. तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जब हम योग बोलते हैं तो योग का असली मीनिंग क्या है? योग का मतलब युज धातु से बनता है. युज माने जुड़ना. योग माने जुड़ना. किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना. दिस इज योग, मतलब टेक्निक हाउ टू मीट योर परमात्मा. परमात्मा से कैसे मिलोगे, यही है योग. तो आप परमात्मा से मिल पाए हैं योग को? मिल पाए तो नहीं है, लेकिन लगता है इस ऑलमोस्ट देयर मेनी टाइम्स. ऑलमोस्ट देयर, बट हम झूठ नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट्स अ सेम्बलेंस. एक तरह का प्रतीत होता है कि शायद. तो इसलिए योग, अच्छा, योग बिना अभ्यास के नहीं होता है जी. और अभ्यास जो है, दो चीजें गीता में कही गई हैं कि बेटा ये कर्म का फल का इच्छा छोड़ने के लिए दो चीजें करना पड़ेगा, योग और वैराग्य जी ना. तो योग जो करेगा, और वैराग्य जो है वो कैसे होगा? वैराग्य का मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया, घर बच्चा सब छोड़ दिया, ये नहीं. वैराग्य का मतलब फल में इच्छा का वैराग्य. जो फल की प्राप्ति से जो मिले न मिले, जो मिलना हो मिले, यही वैराग्य है. ये नहीं कि हम अब गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम जाके गर्मी में रहेंगे, ये वैराग्य नहीं है. राग माने प्यार जी. वैराग्य मतलब विगतः राग, जिसका राग निकल गया, आज उसके बियॉन्ड चला गया, तो वैराग्य है. तो यू डोंट हैव पेन और प्लेजर. इफ यू लूज इट, यू डोंट हैव पेन. सुख दुखे समी कृत्वा लाभौ जया जयो. सुख दुख में सेम रिएक्शन होगा. हाँ. लाभ या लॉस में भी सेम रिएक्शन होगा. बस सुख दुख समी कृत्वा, समान. लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो चाहे पराजय हो, सब में वैसे ही जो रहे, वही वैरागी है ना. वही वैरागी है. हाँ. Which means you really have to go beyond. You have to evolve to that level that everything is the same for you. तो इस normal जो बोलते हैं आपको, staying in the normal world as a normal person, yet if you're able to show these things that you are beyond everything, and yet if everything affects you like that, that you're not affected. Yes. So yet everything affects you like that you're not affected, then you're a true yogi. Yes. पत्रे अम्भसी सदाइव, जैसे कमल का पत्ता पानी के ऊपर रहता है जी. उसके ऊपर बूंद डालिए तो बूंद चली जाती है, उससे बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होती है. कमल देखा है? कमल के पत्ते में एक बूंद डलती है तो वो स्लाइड कर जाती है. तो वो वैरागी है. इसी लक्ष्मी का जो है चरण उसी पे है, और लक्ष्मी का चरण कमल पे इसीलिए है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था. थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी. नो दिस इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर सिंबल्स. हम लोगों के सिंबल को बिना समझे हम लोग पागलों की तरह उसको समझते हैं. दैट इज नॉट गुड. वी हैव टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग कि ऐसा क्यों. लक्ष्मी किसके पास रहेगी? जिसका कमलवत रहेगा, जल में कमल की तरह जो रहता है उसी के पास रहेगी. तो लक्ष्मी जी की जो हम पूजा करते हैं दिवाली पे, वो लाओ पैसा लाओ, हाँ, तो वो गलत है. हमें अपने आप को उतना प्योर बनाना है कि लक्ष्मी जी हमारे पास रहें. वहीं और कहीं जाए ना, और कहीं जाएंगे ही नहीं. बट द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू पुल डाउन लक्ष्मी टू माई होम लाइक दिस एंड क्लोज द डोर एंड द क्लोजेट, दैट इज नॉट लक्ष्मी.
And that is what everybody is doing today. That is what. तो फिर हमें किस तरह की पूजा करनी चाहिए? हमें अपने आप को प्योर करनी, वही करना चाहिए जो ये पूछ रही थी, अपने आप को प्योर करो, स्पिरिचुअली अपने सोल को डिटॉक्सिफाई करो, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, अपने आप को कमल की तरह बन जाओगे। बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा तितली पकड़ता है, ठीक है, वो थक जाता है तो तितली नहीं पकड़ पाता, जैसे ही वो बैठ जाता है तितली आके उसके ऊपर। कितनी सुंदर कहानी, ये कहानी है। तो जो आदमी योगी रहेगा, जो आदमी समझदार रहेगा, वो ऐसे ही नहीं दौड़ेगा तितली के पीछे, वो उसके लिए अपना मस्त रहेगा। मिले ना तितली, ना पकड़ पाए कोई बात नहीं, वैरागी रहेगा तब जाके उसको मिलेगा। दुनिया को लगेगा अरे यार इसको मिल गया, उसको फिर भी नहीं लगेगा कि उसको मिला। यही सीक्रेट है, यही सीक्रेट है कि चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। हाँ, अपना इन डेप्थ जो बोलते हैं गोता लगाओ। हाँ, और मस्त रहो, हाँ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हाँ, बस। तो ये बताइए मुझे कि सबसे बड़ा योगी आपको लगता है कौन है? अर्जुन है? नहीं, कृष्ण है। कृष्ण है। तो कृष्ण सबसे बड़े योगी क्यों है? क्यों? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत के गुरु हैं, समझे? तो उनका तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। क्यों योगी हैं? क्यों योगी हैं? क्योंकि वो अलिप्त हैं, वो किसी चीजों में फंसे हुए नहीं हैं। क्या वो यही कह रहे हैं कि इस युद्ध में हार या जीत इससे किसी तरह से अफेक्टेड मत होना अर्जुन, डोंट बी अफ्लिक्टेड, जस्ट डू योर कर्मा, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स एंड क्विट द थॉट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कर्मा, द डूअर, दैट मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा, नो, मैं मार रहा हूँ, ये छोड़ दो। ये सोचो कि कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहा है। सो सरेंडर टू द ऑल योर कर्मास टू कृष्णा, ऑल योर कर्मास टू कृष्णा। जो आपको करना करिए, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। द मोमेंट यू स्टॉप दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू आर इडियट। ही इज रिस्पॉन्सिबल, बट आर यू सो प्योर टू, तुम्हारा एंटीना में उनका मैसेजेस पकड़ने का क्षमता है? दैट्स द की पॉइंट। वही तो बात है। मैसेजेस तो वो भेजते हैं, हम पकड़ नहीं पाते, हम पकड़ नहीं पाते, हम ऑब्जॉर्व नहीं कर और पाते। हम किताब पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, और जो ऑब्जॉर्व करता है वो आगे असली में निकल जाता है लाइफ में। क्योंकि बोलते हैं ना 5 लोग के पास सेम मैसेज आता है, एक ही जना उसको पकड़ के उसके बारे में कुछ कर पाता है। बस मैसेज वो हमेशा भेजते हैं, उनके सिग्नल्स आते रहते हैं, बट वी आर नॉट एडेप्ट एंड क्लीन इनफ टू रियली एक्सेप्ट इट एंड गेट इट एंड इंटरप्रेट इट। तो मुझे ये बताइए, इज योग द राइट वे ऑफ क्लेंजिंग? इन द सेंस दैट आई हैव हर्ड दीज 2 वर्ड्स, हठ योग एंड अष्टांग योग। ये दोनों क्या हैं एंड इनका मीनिंग क्या है? ऐसा है कि हठ योग का मीनिंग ये है, ह माने सूर्य, ठ माने चंद्रमा। लेकिन इसको ज्यादातर इसको बदनाम करने वाले लोग कहते हैं कि ये हठ माने, हठ एक शब्द हिंदी में आता है ना, बड़ा हठी है, जिद्दी है। हाँ। तो इसको ये उसका मतलब एक मिसनोमर सा बना दिया है कि बड़े हठी हैं। हठ का मतलब ये होता है सूर्य और चंद्रमा, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का अपने योग द्वारा नियंत्रण करके किस नाड़ी में? सुषुम्ना नाड़ी में मिला देना जी। 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। गंगा, जमुना, सरस्वती, वो सरस्वती है। सुषुम्ना जो कि रीढ़ की हड्डी के बीच में चलती है, वो सुषुम्ना है। और बाएं और दाहिने तरफ जो है ये ईड़ा और पिंगला चलती है। तो ह और ठ को मिला के एक कर देना। एक कर देने से क्या होगा? सबसे उसकी घेरन जी ने जो कहा, घेरन ऋषि ने कहा कि अगर तो आपका क्या होगा, सांस समान हो जाएगी, वो एकदम शिथिल हो जाएगी और आप मरेंगे भी नहीं, मृत्यु भी नहीं आएगी। इसीलिए लोग, मुनि लोग 1000 साल तक तपस्या करते रहते थे हठ से, बिकॉज योर एनर्जी एग्जॉशन विल स्टॉप। ओके। अब हमारी एनर्जी क्यों खत्म होती है? क्योंकि हम उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं बाय डूइंग दिस वेस्टिंग और ब्रेथ। इसीलिए प्राणायाम का क्या मतलब? प्राणों का आयाम। एस्ट्रोलॉजी में ये सीखा है कि जैसे अंजलि 3,32,36 बार सांस लेगी जीवन में, उसके बाद मर जाएगी।
ये कैलकुलेटेड हो जाता है। इसी से हम लोग लाइफ लाइन जोड़ते हैं कि इतनी सांस लेगी। So every person has X number of सांस, X number of प्राण, किसी की 2 करोड़, किसी की 5 जो करोड़, भी है, किसी की जो भी। ये एस्ट्रोलॉजर यही देखता है कि इनकी कितनी बार सांस लेंगे ये जी। अब मामला क्या है, ये तो डिसाइडेड है कि दैट यू आर गोइंग टू ब्रीथ सो मेनी टाइम्स, दिस नोबडी कैन चेंज, बट यू कैन चेंज बिकॉज यू आर योगी। व्हाई? यू डेलिबरेटली टेक कम सांस बाय डूइंग प्राणायाम। एक सांस और दूसरे सांस के बीच में अगर आपने अंतर बढ़ा दिया, अब ले ही नहीं रहे, तो तुम्हारा सांस तो वही काउंट होगा ना। हाँ, सो बट योर लाइफ एक्सपैंड्स, हाँ, योर लाइफ स्पैन एक्सपैंड्स बिकॉज यू आर एबल टू कंट्रोल। तो जैसे हम सुनते हैं देवरा बाबा के बारे में, हम सुनते हैं कई ऐसे दिग्गज संत हुए हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं जो बहुत साल जिए, 400 साल, 1200 साल, वो शायद इसीलिए। और अभी भी हिमालय में आई थिंक there are lots of yogis who have been there for maybe 2000 years, 3000 years, we don't know. All the creatures which breathe fastly die early. हाथी 100 साल जीता है जी, और वो वेल्स वो 200 साल जीते हैं। Why? Because they breathe lesser. मतलब ये स्टोरी सामने है, फिर भी हम इसको समझते हैं। तो ये प्राणायाम का और कोई मतलब, प्राणायाम नॉट एक्सरसाइज। पूरक, कुंभक, रेचक तीनों क्रियाओं को जितना डिलेड ढंग से आप करेंगे उतने आपके, क्योंकि आपका नंबर ऑफ कोटा जो है सांसों का वो तो डिसाइडेड है, तो उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, यही योग है। उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, कितनी कम बार हम सांस लें बस। तो जब आप कम बार सांस लेंगे तो आपका चित्त जो है अपने आप स्थायी रहेगा, आप परेशान नहीं रहेंगे, आप रिएक्टिव नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिव रहेंगे। योगा इज टू बिकम रिस्पॉन्सिव। किसी चीज, कोई चीज हुई, अब जैसे किसी ने गुस्सा किया, somebody is सही मार देंगे, तो यू आर रिएक्टिव, हम भी मारेंगे, दिस इज रिएक्टिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब, अरे क्यों मारेगा, मारेगा तो देख लेंगे, तो इस तरह उसने मारा, उसको मारने दो, हाँ, अभी हम देखते हैं। तो बस बी रिस्पॉन्सिव, नॉट रिएक्टिव, यू वेस्ट एनर्जी। ये तो बहुत बड़ी सीक्रेट जिंदगी की आपने बता दी कि बी रिस्पॉन्सिव नॉट रिएक्टिव। हाँ, ऑल ऑफ अस आर रिएक्टिव, यस, वी रिएक्ट, दैट एक्शन वर्सेस रिएक्शन। तो किसी ने जोर से बोला, हम और जोर से बोलेंगे, किसी ने गुस्सा किया, हम और गुस्सा किएंगे, कोई हंस के बोलेगा तो हम भी हंस के बोलेंगे, लेकिन ऐसा क्यों? हमें तो रिस्पॉन्सिव होना है। हाँ, सो देन इफ यू आर रिस्पॉन्सिव, यू आर ऑल्सो ट्रू टू योरसेल्फ, देन यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ एंड यू आर योगी। वाओ, यू आर अ योगी। सो मेनी सीक्रेट्स। तो ये बताइए, तो योग की अगर आप बोले कुछ 4 सीक्रेट, 5 सीक्रेट या इस तरह से बताना चाहें, तो क्या सीक्रेट्स हैं जो हर जने को इम्बाइब करनी चाहिए? सबसे पहले तो भोजन जी, फूड। योर फूड इनटेक शुड बी ओनली अकॉर्डिंग टू योर भूख, क्षुधा आश्रितम, तो क्षुधा के आश्रित होना चाहिए। हम लोग 99% लोग भूख बिना लगे खाते हैं। आइए एक वेस्टर्न कंट्री से डाइनिंग सेट और डाइनिंग टेबल आया, और हम लोगों को बताया गया कि ऐसे 8 बजे घंटी बजाती है, सब लोग खा लो। क्यों खा लो? भूख लगी है क्या? नहीं, बस इट हैज बिकम अ हैबिट। तो फूड शुड नॉट बिकम हैबिट, इट शुड बी बेस्ड ऑन योर जठराग्नि। जठराग्नि मतलब पेट चल रहा है, भूख लगी है कि नहीं, जठर की अग्नि, पेट, जठर मतलब पेट, मतलब there is a system which will tell you, but we don't listen to that system. No, we have conditioned that system to our facilities और what culture, इससे कर लिया है। तो जब हम, पहली बात मैंने बताया फूड जी, दूसरी बात ये बताएंगे कि लिसन टू योर बॉडी, लिसनिंग टू योर बॉडी, एंड लिसनिंग टू योर बॉडी का मतलब वही सिग्नल वाली बात है। बॉडी ने भी सिग्नल देना बंद कर दिया है, क्योंकि यू डोंट लिसन टू योर बॉडी, यू लिसन टू योर टंग। आज जो है वो मसाला डोसा खाएंगे, क्यों खाएंगे? मतलब लिसनिंग यहाँ से सब जगह से होने की जगह केवल ईयर से रह गई है, टंग से रह गई है। जीभ का टेस्ट, योर टेस्ट बड्स से यू ईट, चाट खानी है, गोलगप्पे खाने, तो ये थोड़ी कुछ करने वाली है। तो ये आपकी इच्छा शक्ति ऐसे हो कि भूख लगने पे खाएं। चाट मन के, क्योंकि जब मन तो आपका नियंत्रित हो जाएगा, योगी हो जाएंगे,
तो मन चार्ट को देख के नहीं भाग दौड़ेगा, तो आपकी जीभ भी शांत रहेगी। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां शांत हो जाती हैं और आपको फंसाती नहीं है। फिर आप जो है पिक्चर देखने के लिए 12 फेल और 12 पास कौन कौन पिक्चर आई है वो सब देखने के लिए आप नहीं जाएंगे, मन नहीं है, क्योंकि हमारा सब हम रिएक्टिव नहीं रहे हो। अरे वो सबसे बड़ा क्रिएशन तो भगवान ने इस बॉडी में दिया है, इसमें जिसको कहो कि दिस इज द प्राण प्रतिष्ठा। भगवान ने स्वयं आके इस जीव में प्राण रखा है। तो हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये हमारी बॉडी में ही भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा करके भेजा है। और क्या? तो हम तो सबसे बड़े इन अ वे वी आर वन विद गॉड, बट वी डोंट रियलाइज इट। हम अपने सिग्नल्स भूल गए ना। तो वो क्या है, प्राणों की प्रतिष्ठा भगवान ने आपके शरीर में कर दी है। तो वो आप इसलिए उन प्राणों को आप धन्यवाद प्रस्ताव उनको दीजिए। दिस इज द थर्ड थिंग आई एम सेइंग, थैंक्स गिविंग टू द ऑलमाइटी, कि ये प्राण जब तक आप यहाँ रखे हैं तब नहीं तो इस बॉडी का क्या कीमत है। घर वाले फेंक देंगे बाहर, बिल्कुल ना, मर गया। सूनर द बेटर कर, हाँ, सूनर द बेटर, जल्दी से निकालो। तो प्राणों की प्रतिष्ठा जिस ब्रह्म ने किया उस ब्रह्म को याद करना, उसको धन्यवाद देना। थैंक्स गिविंग इज वेरी, तो हम करते ही नहीं है, कभी नहीं हम जीते हैं थैंक्स गिविंग करते हैं, अरे हमारे पास इतना पैसा है, थैंक्स गिविंग करते हैं, अरे हमारा करियर अच्छा चल रहा है, बस। पर जिसने बनाया उसको तो हम थैंक्स गिविंग करना रोज कभी भूल जाते हैं। कभी नहीं देते, कभी नहीं देते। और हम क्राइसिस में देते हैं कब, हनुमान जी आज हमारा जो है ये ठीक कर दीजिए, हमको वो इम्तिहान देना पास करा दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दे दीजिए। तो ये हम लोगों का तरीका है धर्म का, विच इज रॉन्ग। तो थैंक्स गिविंग जिस दिन नहीं किया उस दिन अपने को अपराधी समझो। सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद दे, भगवान आज उठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेट्स सेलिब्रेट, आज तो आँख खुल गई और चल पा रहे, उठ पा रहे, बस इतना सा धन्यवाद भगवान को देना चाहिए। और जब कब देता है आदमी धन्यवाद, जब उसको एहसान होगा कि भगवान का एहसान है। एक बार सांस निकल जाने में डॉक्टर हो, पीएचडी हो, चाहे जो 1 लाख 15 लाख करोड़ का भी इंजेक्शन लगा कि एक सांस भी ज्यादा ले सकती हो? नहीं ले सकते। कोविड टाइम में तो हमने सब समझ लिया, हाँ, कि क्या क्या हो सकता है, कोई नहीं बचाने आएगा, न घर वाले, न डॉक्टर्स, न पैसा। ओनली इफ यू आर सपोज टू बी सेव्ड बाय द ऑलमाइटी विल यू बी सेव्ड। तो वही मतलब धन्यवाद तो इसलिए देना, एहसान ये मानना चाहिए कि भगवान आपने हमको जिंदा रखा है जी, बस। इतना पीड़ा से होना चाहिए, इतना दुख से भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान हम जैसे नालायक को भी आपने जिंदा रखा है, इतना कुछ दिया है, इतनी फैसिलिटीज दी है, हवा दी है फ्री की, पानी दिया है, ये धरती पे हम रह रहे हैं, कितना कुछ हमारे आसपास हमारे लिए है। ऑल दिस इज फ्री फॉर यू। यस, उसके लिए कोई थैंक्स नहीं। दैट्स द सैड पार्ट। और थैंक्स किसके लिए देते हैं हम लोग, कि हमारा ये काम करा दिया, ये हमारा अच्छा कस्टमर है, क्लाइंट है, इसने पैसा दे दिया, उसका थैंक्स क्या। तो ये हुआ। उसके अलावा चौथी बात है वो ये है कि आदमी को रेगुलर अभ्यास करना चाहिए जी। अनभ्यासे विषम विद्या, अनभ्यासे विषम विद्या, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा विद्या को। हाँ, अगर अभ्यास नहीं करेंगे। हाँ, बिना अभ्यास आपने के, तो मुझे संस्कृत सिखा दिया आज। बिना अभ्यास के विद्या विष है जी। मतलब आप उस चीज को जानते नहीं है, आप बस बोले जा रहे हैं जी। जैसे जितने ये पंडा पुजारी हैं, जितना लोग धर्म को बोलते हैं, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ द मंत्रास। 99% मैं जानता हूँ, मैंने पूछा है बहुत लोगों से, अरे इस मंत्र का क्या मतलब हुआ गुरुजी? अरे ये सब पूछना अपराध है, ठीक नहीं है, ठीक है, नहीं पूछते। तो अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। विष 4 तरह के हुए, बिना अभ्यास की हुई विद्या, अजीर्णे बिना पचा हुआ भोजन, ओके, भोजनम अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, हाँ जी। विषम सभा दरिद्रस्य, और जो गलत लोगों के साथ संगति, रॉन्ग कंपनी, सभा मतलब रॉन्ग कंपनी, ऐसे ये वो विष है, वो भी विष है। और एक फोर्थ भी आप बोल रहे थे, फोर्थ तो हम बता नहीं सकते। अच्छा, वृद्धस्य तरुणी विषम, वृद्ध आदमी के लिए यंग लड़की से शादी करना विष है। अच्छा, इसलिए हम इसको हटा रहे थे जी। बट ठीक है, लोगों को जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। लोग अपनी एज से आधी लड़की के साथ शादी कर लेते हैं, तो वो विष है, वो भी विष है।
तो इसलिए ये सब चीजें जानना और इसका अभ्यास करना और वैराग्य भाव से चलना, भगवान को धन्यवाद देना और अपनी जिह्वा को ऐसा ट्रेन करना कि वो स्वाद के आधार पे नहीं, जरूरत के आधार पे, भूख के आधार पे उसकी मांग होनी चाहिए। जब तुम पैदा हुई, कितना एहसान किया भगवान ने तुमको कि पैदा किया। बिल्कुल। नहीं कितने लोग तो मर जाते हैं पैदा होते ही। चलो वन थिंग, एक अच्छा हुआ काम, जिंदा हुई। लेकिन तुम्हारी माँ के स्तनों में दूध है, इसका नोटिफिकेशन, इसका सिग्नल तुमको कहाँ से मिला? उसी ने दिया ना। तुम्हारे पास दांत नहीं थे तो तुमको तो रोटी पकड़ा के खिला नहीं सकते थे ना। तो भगवान ने कहा इसके पास दांत नहीं है, इसको माँ का दूध पीने दो जी। तो इतना एहसान किया भगवान ने कि तुमको ऑटोमेटिक वो बता दिया कि तुम माँ के स्तनपान करो। और जब बड़े हुए तो दांत भी आ गए। तो जब दांत आ गए तो भगवान ने कहा कि अब जमीन में पैदा करो, खाओ, गेहूं चना ये सब खाओ, ये तो तुम्हारे लिए है। तो कहने का मतलब ईश्वर को धन्यवाद देने का हम लोगों की आदत छूट चुकी है। हम लोग महानालायक हो चुके हैं। और जिम्मेदारी किसकी? भगवान आपने हमने नहीं दिया, जिम्मेदारी उनकी है। काम नालायकी हम करें और जिम्मेदारी उनकी है। तो दारू पी के गाड़ी चलाएंगे, मर गए तो भगवान मार दिया। तो जब भगवान ने हमें पैदा किया तो उन्होंने क्या मैसेज देके पहले इंसान को पैदा किया होगा? और अब हम जहाँ पहुंच गए वो एक अलग बात है, बट इनिशियली क्या मैसेज दिया होगा? मैसेज यही था कि तुम उल्टा पैदा किए गए। हम हर बच्चा उल्टा पैदा होता है। जी बिल्कुल। कान पकड़ के भेजा जाता है जी, जाओ भूमि गिरत भा ढाबर पानी। जैसे भूमि पर गिरोगे, धरा पर तुम गिरोगे बच्चे, तुम गंदे हो जाओगे क्योंकि उसमें तुम मिट्टी में लग जाएगी जी। तो मैसेज ये था कि अपने को साफ रखो। तो भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे जीव को तुम जीव हो जी, तुम मतलब आत्मा हो ना। हाँ। तुमको माया लपेट रही है। हाँ। तो उस मिट्टी को हटाओ, वो माया मिट्टी है। मतलब उन्होंने तो मैसेज देके भेजा था, हम डिसाइफर नहीं करते। ना, हम तो उसी मिट्टी पे रहेंगे अब। हम उसी में लपेट गए हैं। हाँ। और उसी माया के अंदर, माया जाल में फंसे हुए हम जी रहे हैं। तो वो ओरिजिनली तो उसने एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम बिल्कुल पेट से माँ के आए तो कोई मिट्टी लगी थी। तो फिर उन्होंने जब हमको ऐसे देखा माया में लिपटे हुए, शायद इसीलिए उन्होंने योग भेजा। नहीं, हम लोगों ने इजाद किया, हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, योगी ऋषियों ने, मुनियों ने, कि इस माया को काटने के लिए बेटा अब कुछ कर लो, फिर इस धूल को हटाओ। इसलिए कहते हैं कि अरे मन, अरे शरीर को धोने से सब कुछ नहीं होगा, मन को धो। कहते हैं ना कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मैंने हाथों की माला जो जपते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा। मन का फेर, जो मन का फेर। हाँ। रियली मेक्स लॉट ऑफ सेंस। हम यही करते रह जाते हैं। कितनी माला जप ली? 108 की माला हमने जप ली 10 बार। हो गया आज की प्रेयर हो गई, आज बहुत सारी माला जप ली। ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग। पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मन का फेर, ये सबसे कुछ होगा नहीं ना। तो जितना आप अपने ओरिजिनल रूप में पहुंचोगी, वो ओरिजिनल रूप वही होगा जिसमें मन का फेरने से होगा जी। तब आपको जो मैसेज दिया था ईश्वर ने जी, वही आप पढ़ पाओगे। तो आपको क्या लगता है हम इस धरती पे आए क्यों हैं? हाँ, वो एस्ट्रोलॉजिकल आंसर तो उसका सब जानते हैं कि पूर्व जन्म कृतम यद पुण्यम पापम तद जन्मम इव समुदित थे। पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्य के आधार पर आपका जन्म हुआ है। ठीक है। और किस फैमिली में भी हुआ है वो सब डिपेंड करता है। सब प्री फिक्स्ड है जी, एकदम फिक्स्ड मैच है। वो मैच फिक्सिंग है कि बेटा तुम ऐसे ही होगे, गरीब होगे तो अमीर होगे, जो भी होगा। अमीर होगे तो तुम रोज दारू पियोगे, गरीब होगे तो रोज भीख मांगो। ऑल दोज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन प्रीडेस्टिन्ड, जिसको बोलते हैं। वो पैकेज में इंक्लूडेड है। मतलब एक पैकेज में हम आए हैं एंड क्या क्या साथ में लेके आए हैं वो प्रीडेस्टिन्ड है अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट बर्थ्स। हाँ, अब उसमें इस समाज में लॉट ऑफ
gurus, knowledgeable people are there who understand the problem of the जीव, जीव की समस्या समझते हैं, उन्होंने रास्ते बताए। इसलिए कहना गुरु बताता है कि ये सब छोड़ो, जहाँ भी पैदा हुए हो कुछ हुए, तुम्हारे लिए रास्ता है। तो जब ऐसे संकट में हुए जीव को कोई रास्ता बताता है तो उस पर विश्वास नहीं करता है, वो नहीं करता विश्वास, वो कहता है पता नहीं कहाँ के गुरु हैं। तो उस तरह से यही विश्वास अर्जुन ने भी नहीं किया। कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, तब भी वो कह रहा है कि नहीं नहीं, वो हमारी चाची विधवा हो जाएंगी जब उनके हस्बैंड मर जाएंगे, तो उनके बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा भाड़ में गए तुम, इट इज माई टर्मिनोलॉजी। कृष्ण ने कहा कि भाड़ में गए तुम नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ। तब उन्होंने कहा सर्वान धर्मान परित्यज्य मां में मेरा पैर पकड़ लो, जाओ मेरे पास आओ, सब धर्मों को छोड़ दो। ये धर्म माने तर्क कुतर्क जो है तुम्हारा, सब छोड़ो, पैरालिसिस एनालिसिस मत करो। हाँ, ये मत करो प्लीज। 18 अध्याय में 700 श्लोकों में सुनाई गीता उनको, लेकिन पागल को नहीं समझ में आ रहा था, तो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा छोड़, सब छोड़ के आओ, तब हो गया। मतलब इंसान को सामने गुरु दिख रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या करना है, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। उसी बच्चे को देख रहे हैं ना, उसी बच्चे की उंगली पकड़ रहे हैं कि निकलो, क्योंकि तुम अपने कर्म बंधनों से अभी गरीब बन गए हो, अभी अमीर बनने, छोड़ो ये सब चक्कर, हम इसमें से निकाल रहे हैं तुमको। फिर भी हम निकलना नहीं चाहते, नहीं निकलना चाहते, क्योंकि हम उसमें इतनी डीपली फंसे हुए, हम सोचते हैं वही सच है, एंड एक्चुअली में वो सच नहीं है ना। जो ईश्वर सामने खड़े हैं वो सच है, बट वी कांट। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है ये भी सच है, ये आत्मा भी सच है, दो सच है, ये एक परमात्मा और एक आत्मा। हाँ, ये भी सच है जी। इसको कौन फंसा पाएगा? नहीं फंसा पाएगा। ये माया ने लपेट के रखा है इसको, इसी से निकालने के लिए तो गुरु होता है। आजकल जो इतने सारे गुरु होते हैं, समझ नहीं आता किस पे विश्वास करें। कोई ढोंगी बाबा होते हैं, कोई असली गुरु होते हैं। इतना मेस हो गया है दैट वी डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू गो। हाउ सपोजिंग आई वांट टू फाइंड माय गुरु, हाउ डू आई फाइंड माय गुरु? दे से दैट when the disciple is ready, the guru will appear. But am I not ready? I haven't found my guru. What do I do? You will never find. It will come. He will come to you. वो अपने आप आते हैं। क्यों? दत्तात्रेय का सुना नाम? महाराष्ट्र गई हो? Of course. महाराष्ट्र में दत्तात्रेय तो भगवान ही है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं उनको। तो दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। वो एकदम तुम्हारी तरह थे। कैसे? वो कहते थे कोई एक ठो गुरु हमें नहीं चाहिए, हमको बदलना है, हमको ट्राई करना है, हमको ट्राई करना है। एक गुरु पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दे तो ही बिकेम ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का मूर्ति होता है हमें। दत्तात्रेय का फोटो जब देखोगे तो ही 3 in 1। तो उन्होंने कहा कि उनके 24 गुरु थे, सबसे समझा परखा, सब कुछ किया, ट्राई किया अंजलि की तरह, और उसके बाद उनको वो गुरु बन गए सबके। इवन कुत्ते को भी गुरु मानते थे। वो कुत्ते को गुरु मानते थे। ये कुत्ते के अंदर इतना जो है जीवन की इच्छा कहाँ से आई भाई? इतना मार भी खाता है फिर भी खाने की रोटी के पीछे दौड़ता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, और कुत्ते तो योग भी करते हैं। हाँ, मेरे पास एक छोटा सा कुत्ता है, लीगल है। हाँ, वो सुबह उठ के पहले स्ट्रेच करता है। हाँ बिल्कुल, पहले वो पूरा आसन करता है अपना, उसके बाद वो खड़ा होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे ये, तो इसीलिए हमें उनसे सीखना चाहिए। तुम्हारे मुंह से एक बहुत बढ़िया बात निकली। दत्तात्रेय ने यही कहा कि सबसे बढ़िया गुरु प्रकृति है जी। प्रकृति को देखो, कुत्ते को देखो, गाय को देखो। गाय कभी जाती है डॉक्टर के पास? नहीं। कुत्ता कभी जाता है डॉक्टर को? तो हम लोग बदमाश हैं, कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? हम अपने आप को भी लेके डॉक्टर के पास जाते। तो ये जो अभ्यास जो है, प्रकृति को देखो। दत्तात्रेय ने कहा जब भूख लगे तब खाओ, कोई दवाई मत खाओ, कुछ जरूरत नहीं है, ये बॉडी खुद ठीक करेगी, ये बॉडी खुद ठीक करेगी। इसको टाइम नहीं दोगे। सड़क जब बनती है तो देखते हो ना, पीला पीला टोपी लगा के वर्कर लगे रहते हैं। क्या आप लिखते हैं ना, तो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो लगे हुए हैं। और हम लोग तब भी हॉर्न बजाते रहे, खाली करो यार, खाली करो, हम जाएंगे ना। ये है हम लोगों का बॉडी का सिस्टम। हम लोगों का बॉडी का सिस्टम ऐसा है, 16 घंटा हम लोगों को खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 16 घंटा वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है बॉडी में।
तो जो 16 घंटा मेंटेनेंस का काम चल रहा है तब तक आप हॉर्न बजाएंगे कि जलेबी भी खा लें, चाट भी खा लें, तो वो क्या करेगा वर्कर, जो तो उसका माथा पीट के भाग जाएगा कि साले को बीमार पड़ने को हम क्या करें। हाँ। अभी क्यों आए हो, अभी अब आपने भेज दिया उसमें 2 लिमका, 3 बर्गर भेज दिया, खिचड़ी बना दिया। अभी भूख लगी नहीं थी। जीव के चक्कर में, खाली जीव के चक्कर में या कंपनी के चक्कर में या सोसाइटी के चक्कर में, पीयर प्रेशर में आपने दारू पी लिया ना, ये सब कर लिया, लेकिन मेंटेनेंस का 16 घंटा दिया आपने नहीं दिया। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो 16 जो आजकल बहुत चल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन द होल वर्ल्ड। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्रेंड, यही है, प्रकृति का नियम है वो। लेकिन आप नहीं मानते हो, संदेश नहीं सुनते हो, तो कोई अंग्रेजी में बोल के, कोई संस्कृत में बोल के आपको समझाता है तो आपको लगता है एक्चुअली गाय ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करती है। अच्छा। गाय जो है जी। कभी आप खिला लो उसको रसगुल्ला खिलाओ सुबह सुबह, नहीं खाएगी, वो वही खाएगी, चारा खाएगी जो उसके लिए बना है। एक्चुअली सारे एनिमल्स देखा जाए तो वही खाते हैं जो उनके लिए बना है। बकरी कभी इसलिए नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती है, नहीं तो क्यों? शेर कभी वेजिटेरियन नहीं खाता है। जिसके लिए जो बना है वो खाते हैं। कि इंसान ही है जो सब कुछ खाना चाहता है, वो आदमी को भी खा जाता है, वो आदमी को भी खा जाता है, बकरी शेर सबको खा जाता है, बेल को भी तो खा होगा क्या? आपने अपनी बॉडी मैसेज को नहीं सुना तो नहीं, तो बीमार पड़ना। तब आप डॉक्टर के पास जाओ, चाहे यमराज के पास जाओ, दोनों एक ही है। यमराज भी तो डॉक्टर ही है। इसीलिए इतने डिजीजेस फैल रहे हैं दुनिया में। भूख लगती है गाय तब खाती है, जब पेट खराब गाय का होता है तो वो 3 दिन 4 दिन खाली पागुर करेगी, मुंह हिलाएगी बस। हाँ। अपना झाग डिटॉक्सीफाई करेगी अपने को, तभी खाएगी, चाहे उसके लिए बढ़िया से। आई थिंक ये सारे एनिमल्स करते हैं, सब करते हैं। हाँ। कुत्ता भी करता है, कुत्ता भी करता है। मैंने करता देखा, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा पेट 2 दिन खाना नहीं खाता। हाँ। बस थोड़ा थोड़ा बीच में पानी पीता है और आराम से रेस्ट करता है। लेकिन हम इंसान नहीं समझते। हमारी हैबिट है, नहीं बेटा थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, और कुछ नहीं तो दवाई खा लो, और कुछ नहीं तो दवाई खा लो। सो दैट इज द वे वी आर नॉट, वी आर डेफ टुवर्ड्स द गॉड कॉल, वी आर डेफ टुवर्ड्स नेचर्स कॉल। हाउ सैड इज इट, वेयर हैव वी अराइव्ड। हाँ, नेचर को भी कॉल डेफ हो गए जी। हैं, और ईश्वर की भी जो पुकारता है उसको भी डेफ हो गए हैं, और हम लोग मनमाना कर रहे हैं। हाँ। तो तभी हम जहाँ हैं वहाँ हैं बस। अब आप मुझे एक चीज बताएं, What is real success? मीन सक्सेस है बुक लिख दी, सपोजिंग मैंने ही बुक लिख दी, मैं सक्सेसफुल हो गई क्या? ये क्या सक्सेस है? सक्सेस, आप तो इतनी अच्छी जिंदगी जिए, आप रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी हैं, you've seen ups and downs, you've seen the government, you've seen how the country operates in the real sense. तो आपको क्या लगता है, सब कुछ देखने के बाद जिस मुकाम पे आप हैं, आपसे बेटर कोई नहीं आंसर कर सकता। अंजलि कर सकती है, बिल्कुल भी अंजलि कर सकती है। What is real success? Real success is to be happy without any contradictions. That's the thing. To be happy without any contradictions. हाँ, ऐसे तो अगर हैप्पीनेस के साथ अटैचमेंट्स लगा दिए तो अटैचमेंट्स को डिसाइफर करते करते जिंदगी निकल जाएगी। नहीं, वो तो ओशो कहता था ना कि अगर ऐसे आप खूब दारू अच्छी महंगी पी लीजिए तो आप हैप्पी हैं, खूब खुश हैं। हाँ, ठीक है। तो वो हैप्पीनेस नहीं, अटैच उसमें जो है कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होनी चाहिए। जब आदमी दारू पीता है तो उसको अपनी बीवी खराब लगती है, और जब वो और दूसरे की बीवी और अच्छी लगती है, तो ये क्या उसका वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। हाँ। उसको वही अच्छा लगे हमेशा, हर अवस्था में जो अच्छा हो, तब वही हैप्पीनेस है। उसको वही अच्छा लगे हर अवस्था में जो अच्छा एक्चुअली है। हाँ, वो हैप्पीनेस। हाँ, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा ना। तो उस तक अराइव करना तो बहुत मुश्किल टास्क है। उस तक कैसे अराइव करें? बहुत इजी है, बहुत इजी। तो ये इजी तो आपने बोल दिया, मुझे समझाइए इजी कैसे है। इजी ऐसी है कि आप बिल्कुल जब आप वही उसका तो सूत्र पकड़ लिया है तुमने, तुम अच्छा चेला हो, उसका पकड़ लिया है तुमने कि रिस्पॉन्सिव, बी रिस्पॉन्सिव, नॉट रिएक्टिव। बस गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया किसी ने, उसके उनसे क्वेश्चन पूछने को आया तो उसने स्पिट कर दिया। आनंद जो उनका चेला था वो इसको जूता उतार के मारना, ये तो अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, उसको उसके पास जो था उसने दे दिया। हमारा न लेना और लेना हमारी इच्छा है, हम नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिव,
और वो शाम तक वो आदमी आया, वो पैर पकड़ के उनका रोया, वो बात अलग है। लेकिन आनंद को उन्होंने कहा, देखा अगर हम उसमें रिएक्टिव रहते तो वो पछताता ना। और वो गौतम बुद्ध कैसे रहते फिर? हाँ, तो इसलिए उन्होंने भी अभ्यास किए थे, बहुत अभ्यास किए थे। बाप रे बाप, वो इतना अभ्यास किए, निरंजना नदी के सामने गए जब मरने ही वाले थे, मतलब वो मरने ही वाले थे, इतने कमजोर हो गए अभ्यास करते करते, तब उन्होंने कहा कि ये सब ऐसे कुछ नहीं होगा, मुझको बस चीजों को स्वीकार करना है, प्रतिकार नहीं करना। ये है रिएक्शन, प्रतिकार नहीं करना है जी। तो या ऐसा प्यार भी नहीं करना है, दोनों रिएक्शन है। बहुत खूबसूरत आदमी मिला, बहुत खूबसूरत लड़की मिली तो बहुत दौड़ के पकड़ लिया, नहीं, तो स्वीकार करना है। जो जैसा मिला वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। कौन बढ़ाए शाखा? कि जो राम करेंगे वही होगा। तो तुम मस्त रह के सोते क्यों नहीं, आराम करो ना, काहे परेशान हो? और फिर तो कोई काम नहीं करेगा। नहीं, कोई करेगा, करने का एक ही रास्ता बताया, हाँ। मुझको समर्पित करके खूब काम करो। अच्छा, मतलब कर्म करो, मनुष्य मुझको समर्पित कर दो, और मुझको समर्पित कर दो, बस, और बढ़ते रहो। हाँ, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाल दो कि जैसे भगवान पास होंगे कि नहीं होंगे, देखिए आप। मतलब कर्म हमने कर दिया भगवान, अब आप देख लेना, बस ये चीज। और सच्चाई में द्रौपदी बनना पड़ेगा। जैसे मतलब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है जी। तो लास्ट टाइम में हाँ, कृष्ण को बुला रही है, बताओ बताओ, बेइज्जती हो रही है, ये हो रहा है। तो द्रौपदी के चीरहरण का जो सब लोग सभा में बैठे हुए हैं, हाँ हाँ करके हंस रहे हैं। तो द्रौपदी ने बुलाया और उस साड़ी का एक पल्लू दांत से दबा के तब भी रखी थी कि पूरा नेकेड ना हो जाए, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने देखा, वो आने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शी इज फाइटिंग हरसेल्फ, व्हाई शुड आई इंटरवीन। समर्पण इसका है नहीं, ये अपने दांतों और अपने उसमें दबा के साड़ी को रखी है तो बचाए अपने को, व्हाई शी इज कॉलिंग मी। तो उसके बाद द्रौपदी ने छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा दिए, हा कृष्ण, तो तुरंत आ गए कृष्ण। बट व्हेन यू सरेंडर योर सेल्फ ईगो, देन ओनली ही अपीयर्स। एकदम कितना भी कम से कम, तो द्रौपदी का चित्र समझो यही है। तो एक बोलने वाला सरेंडर नहीं कि वो साड़ी छोड़ देना पड़ेगा। इसका मतलब हर जने की लाइफ में, हर सिचुएशन में, when you actually surrender to God completely, then God comes. And please understand the meaning of surrender. इसीलिए हमने ये द्रौपदी का उदाहरण दिया, actually surrender. मतलब बिल्कुल छोड़ दीजिए। तब then you are not responsible for the failure. तब आप कहीं नहीं। तभी मेरे को लगता है आत्मज्ञान भी तभी हो जाता है जब ऋषि 100 साल भी वो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जिस क्षण वो अपने आप को पूरा भगवान के सामने छोड़ देते हैं, हाँ। कि मैं हूं ही नहीं, मेरी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसी समय उनको आत्मज्ञान हो जाता है। बूंद समानी समुद्र में अब कित हेरी जाए। बूंद जो है, जब तक आत्मा है तब तक एक बूंद अलग है, जब ये समुद्र में अगर समा जाए तब कित हेरी जाए, तब कहाँ ढूंढोगे उसको? समुद्र में चली गई जब, तो तब उसको ढूंढ कहाँ पाओगे? मतलब जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, हाँ, तो फिर आत्मा सरेंडर हो गई, परमात्मा का स्वरूप हो गई, तो फिर वो अलग नहीं रही। तो कहाँ से ढूंढ पाएंगे? और हम लोग वहाँ ज्ञानी जो लोग हैं सब कहते हैं बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। अरे अभी भी तुम हो अगर, तो फिर क्या ज्ञान प्राप्त हो गया? तुम नहीं हो। प्रेम गली अति साकरी जामे दुई न समाये। बूंद और आत्मा और परमात्मा दो है। प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है कि इसमें दो लोग नहीं जा सकते, एक ही जा सकता है। एक मतलब वही, तो वो सब चीज, वो समर्पण का भाव, इतना अटूट समर्पण, हाँ, कि आप रहो ही ना, हाँ, आप विलीन हो जाओ। अरे अंजलि है नहीं, खत्म। अंजलि कौन? उसका तो मैं इनविजिबल तो नहीं हो गई हूँ। चलो लेट्स So one very important question, which I have found somebody I can ask. मुझे ये बताइए, जो बोलते हैं सरस्वती विलीन हो गई, तो सरस्वती क्या सच्ची में विलीन हो गई है, या लोगों को ईड़ा और पिंगला नाड़ी को एक करके सुषुम्ना में जीना आना
आया हो नहीं। गया है, इसलिए बोलते हैं सरस्वती विलीन हो गई। वेरी राइट, यही बात है। एक काली है, एक गोरी है, जी। एक गंगा है, एक जमुना है, जी। सरस्वती वाइट है, ऐसे सुषुम्ना भी एकदम वाइट है और ट्रांसपेरेंट है। हाँ। तो सरस्वती का विलीन होने का तात्पर्य मतलब यही है कि आप जो है उस चीज को इनको मिलाए नहीं ना, आप ब्लेंडिंग कर नहीं पाए, इसीलिए आपकी ईगो और दोनों चीजें। सूर्य का जो नाड़ी है, पिंगला नाड़ी, वो आपको क्रोध देती है, उसका बहुत इतिहास है। और चंद्रमा की नाड़ी जो है वो आपको प्रेम देती है। तो दोनों को मिला के ही बैलेंस होता है। तो ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोटो शायद ये बैलेंस ही है। बैलेंस, समत्वम योग मुच्यते, समता ही योग है, दोनों का बैलेंस ही योग है। मतलब टू लिव अ गुड लाइफ हमें हर चीज में अपने लिए बैलेंस लाना होगा। बिल्कुल बैलेंस लाना, बैलेंस में रहना ही होगा। उसके लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहना है। जो या कान पकड़ के कोई मार दे, जो क्राइस्ट ने कहा एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दे, वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिव है, उसका गुस्सा उतर जाए भाई। जी बिल्कुल, है ना, बस उसका गुस्सा तो उतर जाए बस। तो ये जितने धर्म है, जितने वो है, इनको समझना और पचा लेना, ये जो है योग है। इनको समझ के और लेक्चर मारना ये योग नहीं है। आज तक अधिकांश लोग उसको लेक्चर मारते हैं, ये है उस किताब में ये लिखा है, उस किताब, अरे किसी किताब में कुछ लिखा हो। चैतन्य महाप्रभु जब गए द्वारका धाम पे गए तो वहां पे एक आदमी जो गीता पढ़ रहा था जी। और सब लोग चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, रिएक्टिव हो रहे हैं ना, आज मिल पैर छू ले, ये कर ले। तो वो देख रहे थे, तो एक आदमी वहां गीता पढ़ रहा है और इतने लोग आप लोग दौड़ रहे हैं हमारे लिए। तो उन लोगों से पूछा कि ये आदमी गीता क्यों पढ़ रहा है, और देख रहे हैं कि रो भी रहा है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसा पागल है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा लेट मी गो एंड इंस्पेक्ट, चक्कर क्या है, वो ऐसा पागल आदमी। गए उसको देखे तो वो गीता जो है ऐसे पकड़ के बैठा था, उल्टा। अच्छा। उल्टी गीता पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा इसको तो आता भी नहीं, पढ़ना भी नहीं आता इसको। तो उन्होंने हिलाया उसको, कहा कि भाई क्या कर रहे हो, उल्टी गीता पढ़ रहे हो और रो रहे हो, तुमको कैसे समझ में आएगा। कहे इसके हर लाइन में, हर पन्ने में उल्टा हो चाहे सीधा मुझको कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने उसका पकड़ छू लिया, पैर छू लिया, कहा ये है कृष्ण का भक्त, ये है गीता पढ़ने वाला। इतना सरेंडर्ड है उसको। तो वो कहता है कि साहब उल्टी भी थी क्या, हमें नहीं मालूम है, हमको तो हर जगह वही दिखाई पड़ता है। मतलब एसेंस उसने पकड़ लिया। वर्ड्स की उसको जरूरत नहीं। एक्चुअली तो इतने क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आई थिंक इसकी तो सीरीज करनी पड़ेगी हमको। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much to my pleasure to be here. For the first time in life, I'm talking like this to somebody who has come for a podcast. But thank you, and please keep coming whenever you feel that you want to discuss things or you want to podcast things. So keep coming, and लोगों को जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसको है